Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Okay. Good afternoon. In last lecture, we study about various pharmaceutical calculations. Okay. Like there are two type of system: metric system and imperial system. Today, in this lecture, we will study about. Mute yourself first. Okay. So we study about avoided apothecaries systems. These are the Latin terms which are used for the imperial measurement: pound, ounce, drach, grain, and scruple. These are the some units which are used in an imperial system. Okay. And this is the conversion between imperial system and metric system. You have to remember this conversion. And there are a mass conversion and volume conversion. In mass conversion, you have to remember this table. 1 grain is equal to 60 milligram. 15 grain is equal to 1 gram. 1 trace is equal to 4 gram. 1 ounce is equal to 30 gram. So this table you have to remember. And for the volume, minimum unit is a minims, and maximum unit in imperial is a gallon. 1 gallon is equal to 4.5 liter. Okay, this we already studied in a previous lecture. There are also some household measurement like 1 teaspoon, dessert spoon, tablespoon. So once there are a metric conversion, 1 teaspoonful is equal to 4 to 5 ml, dessert means 8 to 10 ml, and table means 15 ml of liquid. Okay. Last lecture we study about reducing and enlarging prescription or recipe, because there are a formula. This is given in a Latin term, and maybe this formula is in a large amount, for example for 1000 ml or 1 liter, or there may be only 100 ml formula and you have to require to formulate 200 or 500 ml liquid preparation. So you have to require reducing the or enlarging the prescription. So that we can do by easy to find out factor. By using a factor, we can easily enlarge or reduce our formula. For example, here one we have one example: sucrose 450 milligram, 450 gram, and water quantity sufficient to 100 ml, 1000 ml. Okay, and you have to require only 60 ml syrup. So how to find out ratio or conversion factor? It is a required amount. Required amount is a 60 ml, and original or given formula is for the 1000 ml. So 60 ml divided by 1000 ml gives you a 0.06. So you have to multiply every ingredient with this factor so you can find out the answer. Okay. So that we already study in a last lecture. We also discuss about calamine lotion conversion. Okay. Yes, this is also covered. Percentage solution. Percentage solution is expressed in a 4 unit, or 4 expression are there for the percentage expression in the weight, between weight and वॉल्यूम. अगर आपको वेट और वॉल्यूम के बीच में कुछ परसेंटेज डिनोट करना है तो आपको ये 4 एक्सप्रेशन यूजफुल रहेगी. What is the meaning of this 4 expression is that first W is for the solute amount, and second means last, that V or W here, it is for the solvent. Okay, so if there is a 1% weight by volume, W by V, it means that 1 gram of solute or solid dissolved to produce 100 ml of solution. Okay, same.
Weight by weight means 1 gram of solute, 100 gram of solvent. Volume by weight means 1 ml of solute and 100 gram of solvent. ओके, यहाँ पे solvent solid में होगा, liquid में नहीं, जबकि solute है वो liquid में. While there is a percentage volume by weight. Okay, and last one is a percentage volume by volume. It is a 1%. If there is a 1%, it means that 1 ml of solute. It is generally used for the solution preparation. Like in routine, we use this expression percentage volume by volume while we are mixing liquid in a liquid. जब भी आप कोई लिक्विड को दूसरे लिक्विड में ऐड करते हो, then you have to use this expression. 1% volume by volume means 1 ml of solute dissolved to produce 100 ml of solution. So here solvent is 99 ml. Okay. So this is all up to we study about pharmaceutical calculation. So in today's lecture we start about alligation. Now why this pharmaceutical calculation is helpful for the, because in every time in the prescription there is a different amount or different concentration of ingredient are given. For example, in our laboratory, if we have only a 95% alcohol and 10% alcohol, and if there is in a prescription requirement of 50% alcohol, which we do not have. So how to prepare this 50% alcohol from available mixture? जो आपके पास अवेलेबल कॉन्सेंट्रेशन है उससे कोई दूसरा कॉन्सेंट्रेशन कैसे बनाया जाए, दैट इज इजीली फाइंड आउट बाय द एलिगेशन मेथड. एलिगेशन मेथड का सिर्फ एक सिंपल रूल है कि जो भी रिक्वायर्ड अमाउंट है, जो कॉन्सेंट्रेशन आपको चाहिए, जो रिक्वायर्ड अमाउंट है, वो हाइयर कॉन्सेंट्रेशन और जो आपके पास जो अवेलेबल है कॉन्सेंट्रेशन, उन दोनों के बीच का होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, here we have one example. Okay, find parts of 95% alcohol and 49% alcohol. ये दो परसेंटेज वाले अल्कोहल है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. ओके, here volume by volume. If these 2% of alcohol preparation are available in lab, okay, are needed to make a 70% volume by volume strength. अभी प्रिस्क्रिप्शन में आपके पास जो प्रिस्क्रिप्शन आया है डॉक्टर का, उसमें लिखा है कि यू हैव टू यूज 10 ml ऑफ 70% अल्कोहल, जो आपके पास है ही नहीं, अवेलेबल ही नहीं है. ओके, आपकी लैब में सिर्फ ये 2 ही परसेंटेज वाले अल्कोहल है, तो उससे 70% कैसे बनाया जा सकता है, दैट यू कैन इजीली फाइंड आउट बाय द एलिगेशन मेथड. ओके, दैट इज आल्सो यूज्ड इन नॉर्मल लाइफ. नॉर्मल लाइफ में भी आप यूज कर सकते हो इसको. कोई अलग कॉन्सेंट्रेशन है जिसको आपको मिक्स करना है और एक आउटर बनाना है. फॉर एग्जांपल, यहाँ पे दो कॉन्सेंट्रेशन है, मगर एक इसका बेसिक रिक्वायरमेंट यही है कि देखो हमारे पास 95 अवेलेबल है और 49 अवेलेबल है. तो इन दोनों के बीच में जितने भी टर्म आते हैं, जितने भी कॉन्सेंट्रेशन आते हैं, वो हम बना सकते हैं विथ यू हेल्पिंग द 95 एंड 49. मगर इससे हम 47 48 नहीं बना सकते, क्योंकि 47 और 48 इज अ लोअर देन 49. सेम 49 से जितने लोअर कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन आप इन दोनों से नहीं बना. मीन्स इसका एलिगेशन मेथड का एक सिंपल सा रूल है कि यहाँ पे देखो, ये नीचे क्लियरली दिखाया है कि रिक्वायर्ड परसेंटेज आपका जो है वो किसके बीच में होना चाहिए, स्ट्रॉन्गर परसेंटेज और वीकर परसेंटेज, इन दोनों के बीच का होना चाहिए. अगर इससे हाइयर भी है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हाइयर 95% है, बट इफ यू वांट टू रिक्वायर टू प्रिपेयर 96% और 90-70%, इट इज नॉट पॉसिबल. वो पॉसिबल नहीं होगा. यस, बट वी कैन प्रिपेयर 92 93 94 90 95 से जितने कम है वो सारे प्रिपरेशन, सारे मिक्सचर बना सकते. ओके, so 95%, 49%, our required quantity is 70. अब यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करना है, हाउ टू परफॉर्म एलिगेशन मेथड. ओके, so here I show you how to perform alligation. Okay, so here first we show this example. Here stronger percentage are given, weaker percentage are given, and your required quantity is here. For simplification, if we take here 100% of alcohol is present and here only 10% of alcohol is present,
ओके, एंड आवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी इज 50। अगर हमको 50% वाला अल्कोहल चाहिए, यहाँ पे 10 दिया हुआ है, 100 दिया हुआ है, तो 50% वाला कैसे बने? सो जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दिस एरोज। फर्स्ट एरो ऐसे जा रहा है कि स्ट्रॉन्गर कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 100, उसके बाद रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 50। ओके, तो यहाँ पे आपको ये आंसर लिखना है कि स्ट्रॉन्गर परसेंटेज कितना हुआ हमारा, 100। ओके, माइनस रिक्वायर्ड कितना है, 50। So final answer will be 50. Okay, final answer will be 50. Same for a vehicle. अब हमारे पास कितना है, 10%, रिक्वायर्ड क्वांटिटी कितनी है, 50। तो रिक्वायर्ड क्वांटिटी यहाँ पे प्लस में आंसर आना चाहिए, इसका मतलब यही है, रिक्वायर्ड माइनस विकत लिखा है इसीलिए। ओके ओके, तो 50 minus 10 it gives you a 40। ओके, तो हमारे आंसर क्या आया, 40 है। So if you take 40 parts of a stronger alcohol, अब इस एरो को फॉलो करना है, ये एरो जो दिखा है, इफ यू टेक 40 ml या ml ले लो, 40 पार्ट्स या 40 ml ले लो, 40 पार्ट्स ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर अल्कोहल। अगर 100% वाला अल्कोहल आप 40 ml लेंगे और 10% वाला अल्कोहल आप 50 ml लेंगे, तो जो 90 ml जो सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड होगा, वो उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा उस अल्कोहल का, what is the concentration of this alcohol is a 50%। अभी इसी हिसाब से ऊपर वाला एग्जांपल देखते हैं, here 49 is given, 95 is given, our required quantity is a 70। So same from 95 minus 70 it gives you a 25, वो आपको आंसर देगा 25। 49 minus 70 it gives you a 21। तो यहाँ तो आप इसको बोले पार्ट्स, 21 पार्ट्स या 21 ml ऑफ 95% वाला अल्कोहल है, जो हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला अल्कोहल, वो ले लो, एंड 25 ml या 25 पार्ट्स ऑफ 49% अल्कोहल, वो जो मिक्सचर बना, टोटल मिक्सचर कितना बनेगा इसका, 21 प्लस 25 46। ये जो 46 ml अल्कोहल प्रिपेयर्ड हुआ, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, वो कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा, 70% volume by volume। So are you understanding this thing? Yes, sir. बाकी किसी के पास अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ पे समझा सकता सर एक बार फिर से रिपीट कर देना। हूँ। यस, ओके। Simple, in alligation method you required one higher concentration, one lower concentration, एक स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, एक वीकर होना चाहिए, और आपका जो रिक्वायर्ड है वो क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच का होना चाहिए। ओके, ये बेसिक है यार, इसके बाद आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा वो सॉल्व हो जाएगा, सिंपल। ओके, अभी इस यहाँ से एरो की तरह जाना है, देखो ये क्रॉस लगाना है, क्रॉस में अगर 95 से 70 को माइनस करना है, आपका आंसर क्या आया है, 25। ओके, यहाँ से क्रॉस लगाना है कि 49 में से 70 माइनस करो या 70 में से 49 माइनस करो, जो आंसर है वो 21 आया। माइनस आंसर नहीं लिखना है, प्लस ही आंसर लिखना है। ओके, सो 21 विल बी आंसर। अभी यहाँ से इसको इसके साथ कोरिलेट करना है, स्ट्रॉन्गर के साथ। 21 पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रॉन्गर, 25 पार्ट्स ऑफ अ वीकर। ओके, इसको फिर से इसी के साथ कोरिलेट नहीं करना है जहां से आपने ये आंसर लिया है, इसको उसके सामने जो भी अवेलेबल है उसके साथ कोरिलेट करना है। देखो 21, अगर पार्ट्स ना देखो और ml देखो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये एक 21 ml अगर हम 95% वाला ले और 25 ml 49% वाला अल्कोहल ले, तो उसका जो मिक्सचर हुआ, ये मिक्सचर उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो 70%। सो ये कॉमन एलिगेशन मेथड है, जो मैथमेटिक्स का बेसिक्स रूल है। इससे आप ये जनरल एप्टीट्यूड में, जनरल अंडरस्टैंडिंग में भी ये आता है, हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इसी रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि
कोई हाइयर कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हाइयर वैल्यू दी होगी, लोअर वैल्यू दी होगी और आपको कोई बीच की वैल्यू निकालनी होगी, तो उसके लिए इन दोनों को कितने अमाउंट में मिक्स करना है। कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि अच्छे गेहूं है उसके 80 रुपए है, बुरे मीन्स थोड़े कम क्वालिटी क्वालिटी वाले गेहूं गेहूं है या कोई अलग सब्सटेंस है उसके 40 रुपए है। तो अगर आपको गेहूं को 60 रुपए में बेचना है तो उसके लिए इन दोनों को कितने amount में mix करना है। तो यहाँ पे भी आप एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हो। ओके, तो मगर उसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही है कि आपका जो रिक्वायर अमाउंट है वो इन दोनों के बीच का हो। क्लियर? दिस इज द एलिगेशन मेथड। यस, एनी क्वेश्चन? नो? नो सर। यस। तो यार देखो अब तक 2 ही थे, अब यहाँ पे 4 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको एक ही बात याद रखनी है कि व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड, इट मस्ट बी लाइज बिटवीन हायर एंड लोअर। देखो यहाँ पे हमारे पास 4 अल्कोहलिक कॉन्सेंट्रेशन है, 30, 40, 60 एंड 70। रिक्वायर्ड कॉन्सेंट्रेशन कौन सा है? 50% वाला। ओके, सो 50% 70 और 30 के बीच में आता है और 60 और 40 के बीच में भी आता है। ओके, सो यस, देखो इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आता 50, इसके बीच में भी 50 नहीं आ रहा है। सो हमको एलिगेशन मेथड कुछ इस तरह से सेट करना होगा। अगर 4 लिक्विड है तो यहाँ पे आप 5 लिक्विड आप यूज नहीं कर पाओगे, समझ? वी ओनली यूज इन कॉम्बिनेशन, क्योंकि मिक्सर जब बनाना हो तो कॉम्बिनेशन से 5 भी बना सकते हो। 5 कैसे बना 3 कैसे बनाते हो वो मैं आपको समझाऊंगा बाद में। मगर यस, किसी का माइक अनम्यूट, चौधरी नेहा, म्यूट योर माइक। ओके, so here 70%, 60%, 40% और 30%। रिक्वायर्ड क्या है? 50। बस हमको इसको इस तरह से सेट करना है कि यहाँ पे जो एलिगेशन आए इन दोनों के बीच में 50 है। देखो इसमें 2 तरह से मेथड अप्लाई किए। फर्स्ट 70 माइनस 50, कितना आंसर आया? 20। ओके, तो ये जो अल्कोहल लेना होगा वो आपको कौन सा लेना होगा? 30%। ओके, अभी यहाँ से देखो 30 माइनस 50, आंसर क्या आया आपका? 20। उसका जो ये 20 पार्ट्स किसके लेने होंगे? 70% वाले अल्कोहल के। अभी ये 2 बचे हैं बीच के, 60 और 40। तो व्हेन यू माइनस 60 माइनस 50, आंसर विल बी 10 एंड 40 माइनस 50, आंसर विल बी 10। माइनस कंसीडर नहीं करना है। तो ये आपको पार्ट्स मिल गए, इसको पार्ट्स कंसीडर करो, एमएल कंसीडर करो, जो करना है कंसीडर कर लो। इतने अमाउंट में अगर आप मिक्स करोगे तो जो पूरा मिक्सचर होगा ये चारों सॉल्यूशन का, ये चारों वो किस कितना होगा? 50%। ओके, तो अगर 50% बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? 70% 20 ml लेना होगा, 10% है 60% है वो 10 ml लेना होगा, 40% है वो भी 10 ml लेना होगा और 30% है वो कितना लेना होगा? टोटल फॉर्मुलेशन कितना हुआ? 20 + 20 40 और 20 मीन्स टोटल 60 ml प्रिपेयर्ड होगा, जो आपका उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 50%। ओके, क्लियर? यस सर। समझ Yes, में sir. नहीं आ रहा है तो यू कैन आस्क क्वेश्चन, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, नाउ वी मूव टू द एग्जाम्पल। अभी कुछ नया एग्जाम्पल है, इस ये तो सिर्फ सिंपल है, देखो इसमें कुछ है नहीं। ये आप कोई भी एग्जाम्पल ले लो, ये आपको अभी समझ में आ जाएगा कि इसको प्रैक्टिस करना समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस हम यहाँ पे भी परफॉर्म करेंगे अभी। बट नेक्स्ट एग्जाम्पल हियर, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ईच ऑफ 90%, 60%, 30% and water are required to produce 500 ml of 50% alcohol। अभी इसकी डिजाइन बनानी हो एलिगेशन, तो कैसे बनाओगे? इसकी डिजाइन अगर प्रिपेयर करनी हो तो इसकी डिजाइन आप कैसे प्रिपेयर करोगे? सो हियर
व्हाट आर गिवन हियर, 90% दिया हुआ है, उसके बाद है हमारे पास 60% दिया हुआ है, फिर 30% दिया हुआ है, और लास्ट में देखो वाटर भी लिखा है। वाटर के अंदर कुछ भी अल्कोहल नहीं होता, तो उसको आप क्या कंसीडर कर सकते हो, जीरो, क्योंकि वाटर मिक्स करना है। अगर वाटर नहीं लिखा होता तो आप नहीं लिखो, जीरो मत लिखो। अगर वाटर कहीं पे लिखा हुआ है टू प्रोड्यूस अल्कोहल, so you have to mention zero as a water, क्योंकि उसमें कुछ अल्कोहल नहीं होता। ओके, नाउ व्हाट इज अवर रिक्वायर्ड क्वांटिटी, रिक्वायर्ड क्वांटिटी है 50। ओके, 50. ये यस। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड हम कैसे सेट करेंगे, फॉर एग्जांपल 50 यहाँ पे आ गया, ये 50 को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे एलिगेशन मेथड कैसे सेट करेंगे, 90 माइनस 50 इट गिव्स यू 40, इसका आंसर क्या आएगा 40। 0 माइनस 50 आंसर क्या आएगा 85 आएगा। ओके, 60 माइनस 50 gives you 10 and 30 minus 50 gives you 20। तो बस हो गया। आप 50 पार्ट्स 90 ml वाले अल्कोहल के लो, 20 पार्ट्स 60 ml वाले अल्कोहल के लो, 10 पार्ट्स 30 ml अल्कोहल के लो, 30% वाले अल्कोहल के लो, और 40 पार्ट्स वाटर के लो, तो आपका जो प्रिपरेशन है वो बन जाएगा। मगर यहाँ पे फिर एक कंडीशन रखी हुई है, डियर वी हैव टू रिक्वायर्ड ओनली 500 ml अल्कोहल, आपको 500 ml अल्कोहल बनाना है, सिर्फ 100 ml या जितना बन रहा है उतना नहीं बनाना है। तो उसके लिए आपको फिर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट टोटल अमाउंट, इसका टोटल अमाउंट कितना होता है। फॉर एग्जांपल 50 प्लस 20 70 प्लस 10 80 और प्लस 40, टोटल अमाउंट कितना हुआ इसका 120 ml। 120। ओके, 120 ml हुआ। तो अभी हर एक के लिए फाइंड आउट करना है। अगर 120 ml के लिए 90% अल्कोहल 50 ml चाहिए, तो हमको कितना बनाना है 500 ml। तो 500 500 के लिए क्या चाहिए, तो 500 ml के लिए क्या चाहिए, कित- तो हियर you will be find out 500 into 50 divided by 120, 500 into 50 divided by 120, जो आंसर आएगा, क्या आंसर आ रहा है 500 बचे। यस बोलो। सर 208। 208/3. हाँ, जो भी आ रहा है दैट मच ऑफ अल्कोहल 90% अल्कोहल इज रिक्वायर्ड। ओके, तो उसी हिसाब से ये सारे के लिए आपको फाइंड आउट करना है कि 60% कितना चाहिए, 30% कितना चाहिए और 0% कितना चाहिए। देन यू कैन इजीली फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग ऑफ 500 ml। 500 ml बनाने के लिए कितना अमाउंट चाहिए इन चारों ingredient का, that you can easily find out by the alligation method। Okay, now that you have to remember, जब भी आप एलिगेशन मेथड यूज करो अल्कोहल के लिए, तो वाटर लिखा है तो वाटर इज कंसिडर एज जीरो। ओके, 0% सॉल्यूशन कंसिडर करना है। फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे लिखा है कि प्रिपेयर 600 ml ऑफ 60% अल्कोहल फ्रॉम 95% अल्कोहल, तो इसमें कोई दूसरा तो सब्सटेंस दिया नहीं है, तो इसमें आप सोचोगे कि एलिगेशन कहाँ से यूज करूं। मगर यहाँ पे आपको 0% वाटर कंसीडर करके चलो। एलिगेशन पूरा डायग्राम कैसे बनेगा कि 95 आर गिवन, वाटर के साथ उसको मिक्स करना है, मीन्स 0, रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या है हमारी 60, बस इसको इस तरह से एलिगेशन करके आप इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते। ओके,
clear? Yes. So that is known as a alcohol dilution. अल्कोहल डाइल्यूशन या एलिगेशन मेथड, इस एलिगेशन मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितने अमाउंट में अल्कोहल हम मिक्स कर सकते हैं एक इंग्रेडिएंट मीन्स, तो जो इंग्रेडिएंट हमारे पास नहीं है उसको कैसे बनाया जाता है। बाय दिस मेथड यू कैन इजीली फाइंड आउट। ओके, एनी क्वेश्चन अप टू दिस एलिगेशन मेथड का? कोई भी क्वेश्चन? ओके, हेलो सर, 500 ml कैसे बनाएंगे? 500 ml तक कैसे बनाएंगे हम? वो कन्वर्जन का क्या है? इसमें ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ उसका बोल रहे हो? हाँ सर, 500 ml बनाएंगे कैसे? 50 और वो सब वॉल्यूम आ गया था, 120 टोटल हुआ था, तो उस 120 हाँ, को 500 ml में कन्वर्ट कैसे करेंगे वो? हाँ तो ओके ओके, देखो 120 तो टोटल हो गया, मीन्स 120 ml तो बन गया। ओके, अभी हमको और भी चाहिए, टोटल 500 ml बनाना है, तो उसके लिए कैसे बनाएंगे? मैंने ये देखा ना, देखो 120 ml बनाने के लिए 90% अल्कोहल कितना रिक्वायर्ड है था? 50 ml। ये अपनी बुक में लिखते लिखते जाना, ओके, क्योंकि यहाँ पे एनोटेशन में रिमूव कर दूंगा फिर बाद में। 120 ml बनाने के लिए हमको 90% अल्कोहल कितना चाहिए था? 50 ml। तो 500 ml बनाने के लिए वो 90% अल्कोहल कितना चाहिए होगा? ये मैथमेटिकल इक्वेशन डालो आप, तो सिंपली इट गिव्स यू अ 500 into 50 divided by 120। 500 into 50 divided by 120, ये आंसर आएगा। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर आ रहा है वो क्या होगा? 90% अल्कोहल का होगा। देखो अभी इसके लिए सर प्लीज रिपीट करेंगे, मुझे कुछ समझ नहीं आया। हाँ ओके, here what is quantity is given, 90% alcohol is given। ओके, 90% अल्कोहल दिया हुआ है। फिर दूसरा कौन सा था? 60% था, एक था 30%, और लास्ट में वाटर था, मीन्स 0। ओके, और रिक्वायर्ड क्वांटिटी कौन सी थी हमारी? 50%। रिक्वायर्ड क्वांटिटी क्या थी? 50%। अभी हमको एलिगेशन अप्लाई किया, 90 माइनस 50 किया हुआ 40। ओके, 0 माइनस 50 क्या हुआ? 50, 50 ही होगा। ओके, 60 माइनस 50 आंसर क्या आएगा आपका? 10। 10। 30 माइनस 50 आंसर विल बी 20। ओके, सो अभी यहाँ पे देखो एलिगेशन, अगर 40 पार्ट आप वाटर के यूज करो, 10 पार्ट 30% वाले अल्कोहल की यूज करो, 20 पार्ट 60% वाले अल्कोहल की यूज करो, और 50 पार्ट 90% वाले अल्कोहल की यूज करो, तो जो मिक्सचर बनेगा वो मिक्सचर होगा, उसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? 50%। ओके, ये मिक्सचर का टोटल कितना हो रहा है? 120। टोटल क्या हो रहा है? 120। ओके, सो अभी हमको सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन लिखना है कि 120 ml बनाने के लिए, 120 ml बनाने के लिए ये जो 90% अल्कोहल है वो कितना रिक्वायर्ड है? 50 ml चाहिए। ओके, तो 500 ml बनाने के लिए ये 95% वाला अल्कोहल कितने कॉन्सेंट्रेशन, कितने अमाउंट में चाहिए? ओके, तो ये 500 into 50 डिवाइडेड बाय 120। ओके, इसका आंसर क्या आया था? यस, इसका आंसर क्या आया? 208.3. ओके, 208 पॉइंट समथिंग आया था, तो यहाँ पे लिख दो 208 पॉइंट समथिंग, जो ओके, अभी पॉइंट का हम कुछ नहीं बात कर रहे। ओके, फिर पॉइंट का लिखते हैं, ये 90% का हो गया। अभी देखते हैं हम 30% वाला, 30% 60% का देखते हैं। 120 ml बनाने के लिए 60% अल्कोहल कितना रिक्वायर्ड है?
20 ml. ओके, तो अभी हमको बनाना कितना है 500 ml, तो 500 ml के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, so that gives you a 500 into 20 divided by 120. Okay, so here what is the answer, क्या होगा आंसर इसका 83 83 83. 83 ओके, तो ये आ गया 83. अभी यहाँ पे सेम 30% अल्कोहल का लेके चलते हैं कि 120 के लिए इसको बनाने के लिए कितना ml रिक्वायर्ड था 10 ml, तो 500 बनाने के लिए क्या होगा, तो 500 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 120. इसका आंसर क्या आया 41 41 41 41. 41. ओके, अभी वाटर का 40 पार्ट्स मीन्स 40 ml रिक्वायर्ड है, तो 120 बनाने के लिए वाटर 40 रिक्वायर्ड है, तो 500 बनाने के लिए वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए इक्वेशन पुट करो कि 500 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 120. 166 166. ओके, अभी इन सबको प्लस कर लो आप. Sir, final 208. answer 499.8. हाँ 500. 499.8. यस, अप्रोक्स 500 ml हो गया जो हमारा रिक्वायर्ड क्वांटिटी थी. समझ में आ गया 500 ml कैसे बना. Yes. Yes, Yes, sir. sir. yes sir Yes, sir. So that is the basic of alligation method. ओके, अभी आप कोई किसी को क्वेश्चन के ये 500 के एमएल कैसे बना. यस, नो क्वेश्चन. ओके.